Hello children, Ravi Sir here. Dear children, today we are going to start with a new chapter in Social Science. Social Problems of India and Challenges. The 20th chapter in the Civics section of your Social Science textbook for class 10. Dear children, before we move on to any topic in the chapter, first of all, let's have a look at all the main points that we are going to discuss in this chapter. Here, as you can see, first we shall have a brief introduction to the chapter. Then, the second topic would be communalism. Third one, we shall study casteism. Fourth, minority. Fifth topic would be terrorism. Sixth one would be Naxalism, and the seventh one, insurgency. Today, in this session, we shall take up first 2 points together, first 2 topics together. So far as introduction is concerned, my dear, you must have heard that India is a storehouse of various cultures. In India, we find people following different religions, speaking different languages, right? Having different cultural setups, isn't it? Now, it's richness of Indian culture. But dear, though we feel so proud of our unity in diversity, but the same diversity sometimes causes problems and challenges for India. Now, what are those social problems and challenges that we shall study in this chapter, right? First of all, let us begin with communalism, right? The challenges that we are facing so far as our cultural setup is concerned, okay, the first problem arises, that is communalism, right? Now, dear, in the board exam, you may be asked one question for 3 marks, right, or 4 marks, to write a short note on communalism. Then what should be the points in your answer? Let us see. First of all, you will have to discuss the meaning of communalism. पहले तो communalism किसे कहता है, right? उसका अर्थ समझने की जरूरत है. बच्चों, अब communalism को हिंदी में अगर कहें हम, तो हिंदी में उसे कहते हैं कौमवाद, isn't it? गुजराती में भी उसे कौमवाद ही कहते हैं, कौमी, that is communalism. अब इंग्लिश में उसे समझ लेते हैं. देखिए, communalism means to believe in any one religion or sect and follow it rigidly, thinking of others as inferiors. बच्चों, इस डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो समझ लो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. ये देखो, कम्युनलिज्म आप किसे कहोगे बच्चों? देखिए कि कम्युनलिज्म है बच्चों कि ऐसा मानना, हम भारत में हर किसी को आजादी है, राइट, अपने धर्म का पालन करने की. कोई से फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी फॉलो करता होगा, कोई हिंदुइज्म फॉलो करता होगा, कोई इस्लाम फॉलो करता होगा, राइट ना, या तो पारसी धर्म होगा, जैन धर्म, सिख वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी. अब कि सिर्फ एक ही धर्म में मानना, धर्म या तो सेक्ट यानी संप्रदाय, राइट ना, संप्रदाय, उसे सेक्ट कहते हैं. तो किसी भी एक धर्म में या संप्रदाय में
मानना एंड फॉलो इट रिजिडली, और कैसे उसका पालन करना, बहुत ही रिजिडली पालन करना, राइट। थिंकिंग ऑफ अदर्स, यहां तक तो ठीक है बच्चों, हमारे धर्म के प्रति हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात तो ठीक है, अच्छी है, ठीक नहीं अच्छी बात है। लेकिन जब आप थिंकिंग ऑफ अदर्स एज इंफीरियर्स, लेकिन जब आप ये सोचने लगो कि सिर्फ मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, बेटर है, बेस्ट है, और दूसरे धर्म वो तो ठीक है, इंफीरियर है, हमसे, हमारे धर्म से पिछड़े हुए हैं, जब इंसान ऐसा मानने की शुरुआत कर दे बच्चों, तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं, राइट। अगर कोई हिंदू कहे कि आई एम प्राउड ऑफ माई हिंदुइज्म, तब तक तो बात ठीक है बच्चों, लेकिन जब अगर ये कहने लगे कि नहीं दूसरा धर्म गलत है, मेरा ही धर्म बेस्ट है, उसी तरह मुस्लिम अगर ये कहेगा कि नहीं मेरा ही धर्म अच्छा है, दूसरे तो ऐसे वैसे ही है, क्रिश्चियन अगर ऐसा कहेगा, सिख ऐसा अगर कहेगा, दूसरे धर्मों को अगर वो इज्जत नहीं देता, सिर्फ अपने ही धर्म को बेस्ट समझने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं बच्चों। The religious fanatics try to show their religion better than other religion. Religious fanatics यानी बच्चों, यानी जो पूरी धर्म में पागल हो गए होते हैं, who are mad, who are so mad about religion, right? Who are so mad about religion, they are called fanatics. जब ये रिलीजियस फैनेटिक्स वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू शो देयर रिलीजन बेटर देन द अदर रिलीजन, वो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि दुनिया को यही बताते फिरते हैं कि बस दुनिया में सिर्फ मेरा ही धर्म बेटर है, दूसरे तो ऐसा ही वैसा ही है, राइट। उन्हें ऐसे लोग रिलीजियस फैनेटिक्स कहे जाते हैं बच्चों, अंधविश्वास करने लगते हैं, पागल हो जाते हैं धर्म में, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें रिलीजियस फैनेटिक्स कहा जाता है। दे सी द सिटीजन्स नॉट एज एन इंडिविजुअल बट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, वो हर सिटीजन्स को कैसे देखते हैं, एज एन इंडिविजुअल, एक इंसान की तरह नहीं देखते बच्चों, लेकिन कैसे देखते हैं, फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका कोई दोस्त हो बच्चों, तो बस दोस्ती में तो यही देखा जाना चाहिए ना कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, राइट ना दोस्त। अब दोस्ती में धर्म थोड़ी ना देखे जाता है बच्चों, है कि नहीं। तो लेकिन ये रिलीजियस फैनेटिक्स होता है ना, धर्म में जो मजहब में पागल हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं दोस्ती बाद में, पहले उसका मजहब क्या है, पहले उसका धर्म रिलीजन क्या है वो देखो। ये तो गलत हुआ ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। दे गिव इंपॉर्टेंस टू द बेनिफिट ऑफ देयर कम्युनिटी ओनली, बस यही कहते हैं कि बस हमारे ही लोगों का भला होना चाहिए, दूसरों का नहीं, राइट। ऐसा कौन कहते हैं, जो कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं ना बच्चों, वो ऐसा सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में ही सोचते हैं। दे सी द पीपल ऑफ अदर रिलीजन एज कम्युनल एनिमीज, देखो कि दूसरे धर्म के, दूसरे रिलीजन या मजहब के लोगों को वो किस नजर से देखते हैं, दुश्मन की नजर से देखते हैं। उन्हें यही लगता है कि दूसरे मजहब के लोग, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। बच्चों ऐसा तो नहीं होता ना हमारे डेली लाइफ में, फिर भी वो ऐसा सोचते हैं, रिलीजियस फैनेटिक्स।
They try to develop their own identity by remaining aloof from others. और सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में सभी मजहब के, सभी रिलीजन के लोग अगर रहते हो ना बच्चों, तो आपने देखा होगा सभी धर्म के लोग एक दूसरे से सोशल होते हैं, घुल मिल जाते हैं. आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा बच्चों, उसमें हर धर्म के लोग कैरेक्टर्स दिखाए गए और कितने हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख शेयर करते हैं बच्चों. उनमें धर्म नहीं आता, राइट ना. लेकिन ऐसे कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं ना बच्चों, वो सोशल नहीं होते. वो सिर्फ यही सोचते हैं कि नहीं, हमारा मजहब तो यही है, दूसरे मजहब वाले लोगों से हम घुल मिल नहीं सकते, हमारा रिलीजन जो है उससे ही हम मिक्स हो सकते हैं. ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोगों को कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग कहा जाता है बच्चों. और such an ideology leads to the disintegration of society. और ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी सोच रखने वाली राइट लोग बच्चों सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन की ओर ले जाते हैं बच्चों. समाज को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं, राइट ना. जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा में. अगर सोचो बच्चों, अगर हर मजहब वाला, हर धर्म वाला, हर रिलीजन वाला लोग कैरेक्टर उसमें अगर ये कहने लगे नहीं मेरा तो ये मजहब है, इसके साथ मैं नहीं मिक्स होऊंगा, दूसरा कहेगा कि नहीं मैं नहीं मिक्स होऊंगा, तो बच्चों इतनी जितनी अच्छी बढ़िया बेहतर लाइफ वो जी रहे हैं उतनी तो नहीं जी सकते थे ना हैप्पी लाइफ. यही है बच्चों कि कम्युनल आइडियोलॉजी है समाज को, सोसाइटी को, मैनकाइंड को तोड़ देती है, डिसइंटीग्रेट कर देती है बच्चों, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, राइट. तो बच्चों आपको अगर 2 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाए कि कम्युनल आइडियोलॉजी लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, गिव रीजन या तो एक्सप्लेन, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं, राइट. ओके. अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं कि इस कम्युनलिज्म को फाइट अगर देनी हो, उसके दूर करना हो ऐसी सोच को, तो कैसे करें हम. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म. तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इरेडिकेट कम्युनलिज्म, टू इरेडिकेट, टू एबॉलिश, टू रिमूव. अगर इस कम्युनलिज्म को दूर करना है बच्चों, है ना, तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन. पहला कौन सा स्टेप है देख लो. गवर्नमेंट शुड टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट कम्युनल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी. प्यूनिटिव स्टेप्स यानी प्यूनिटिव पनिशमेंट, पनिश में से बना हुआ है प्यूनिटिव, यानी कि ऐसे कम्युनल एलिमेंट्स जो सोसाइटी में होता है ना, जो बस यही कौमवाद का जहर फैलाते रहते हैं, यू नो, कि ये रिलीजन, वो रिलीजन, दिस एंड दैट, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शंस लेने ही चाहिए, राइट. गवर्नमेंट स्टेप्स. उसके बाद है सेकंड स्टेप, एजुकेशन कैन डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड देयरबाय एबॉलिश कम्युनल फीलिंग्स फ्रॉम अमंग यूथ. एजुकेशन का काम ही है बच्चों कि लोगों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है बच्चों. एजुकेशन का काम ही है कि लोगों में ये मजहबी दीवार तोड़कर उनमें साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करता है. वो एजुकेशन सिखाता है बच्चों कि हर इंसान एक जैसे ही होते हैं, राइट ना. मजहब कोई भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, आखिरकार है तो इंसान ही ना. हाँ, तो बस साइंटिफिक एटीट्यूड अप्लाई करो ना, उस नजरिए से देखो हर इंसान को. क्यों मजहबी, क्यों रिलीजियस चश्मे से हर इंसान को देखा जाए,
है ना। तो ये काम एजुकेशन कर सकता है बच्चों। जब आपको बच्चों को एज अ स्टूडेंट आपको जब पता लग जाएगा कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, कम से कम ये तो होगा ना बच्चों, आप तो फ्यूचर जनरेशन हो देश की, और आप तो कम से कम ये ऐसी सोच तो नहीं रखोगे ना, क्योंकि आपकी सोच बढ़ गई होगी, ब्रॉड हो गई होगी, साइंटिफिक एटीट्यूड आप में डेवलप हो चुका होगा। तो ऐसी कॉम्युनल आइडियोलॉजी में आप बिलीव करोगे ही नहीं। सही है ना बच्चों। थर्ड स्टेप इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी हैविंग कॉम्युनल आइडियोलॉजी। बच्चों, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन करवाता है हमारे देश में, तो उसे भी चाहिए बच्चों कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ किसी धर्म, मजहब या रिलीजन को फोकस करती हो, एक धर्म को अच्छा कहती हो और दूसरे धर्म को इग्नोर करती हो या निग्लेक्ट करती हो, या तो उसे भला बुरा कहती हो, तो ऐसी पार्टी को तो पहली बात तो रिकॉग्निशन देनी ही चाहिए, नहीं चाहिए। राइट ना। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसी पार्टी को कह दे कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि यू हैव कॉम्युनल आइडियोलॉजी, इजंट इट। द नेक्स्ट स्टेप इज दे शुड प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली। एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए किसने तैयार करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों। कैसा कि इलेक्शन अगर आ रहा हो तो सारी पार्टी, आपको पता ही होगा बच्चों, कैसे कैसे स्लोगन लगाते हैं कि नहीं हमारे रिलीजन को ही वोट देना है, हमारे रिलीजन को दिस एंड दैट। तो ऐसे पार्टियों के अगेंस्ट में ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट अगर प्रिपेयर हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स अगर ऐसे प्रिपेयर कर दे इलेक्शन कमीशन कि नहीं ऐसी बातें तुम, ऐसे इश्यूज तुम नहीं उठाओगे कैनवासिंग में, राइट, नहीं तो तुम्हारी रिकॉग्निशन, परमिशन इलेक्शन लड़ने की वो नामंजूर हम कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो ऐसी बातें ही नहीं उठाएंगे बच्चों, है ना। उसके आगे बच्चों देखिए, मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड। मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म। अब देखो बच्चों, सेक्युलरिज्म किसे हम कहते हैं बच्चों? चलो, कि अगर कोई इंसान ये कहे ना बच्चों कि मेरे लिए सभी धर्म समान है, मेरे लिए सभी धर्म इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस में सभी धर्मों को देता हूं, तो ऐसा इंसान सेक्युलर कहलाएगा। बिन सांप्रदायिक, जो किसी पर्टिकुलर धर्म या संप्रदाय में नहीं मानता, उसे बिन सांप्रदायिक कहा जाएगा, यानी सेक्युलर कहा जाएगा। राइट ना। अब भी साइंटिफिक एटीट्यूड हमें डेवलप करना है बच्चों। हमें भी यही सोचना है कि सिर्फ हमारा ही धर्म महान नहीं, देश दुनिया के सभी धर्म महान है। सभी देवी देवता, गॉड्स, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, भगवान, लेट अस से गुरु गोविंद सिंह, या जिसे कहते हैं पारसी में खोडाई जैसे कहते हैं भगवान को, ये सभी हमारे अपने ही भगवान हैं, सभी मेरे हैं। ये समझ के जो चलता हो उसे सेक्युलर कहते हैं बच्चों। आई होप यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम आइडियोलॉजी। ओके, तो मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स लाइक रेडियो, टीवी एंड सिनेमा। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा के थ्रू ये सेक्युलरिज्म के सर्वधर्म संभाव का मैसेज और टॉलरेंस का, यानी हर धर्म के प्रति हमें टॉलरेंस, सहनशीलता हमें दिखानी चाहिए।
ये ऐसा मैसेज हमें रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा के थ्रू पास करना चाहिए आम लोगों में। आगे, religious and social leaders should work together to combat, to fight the problem of communalism. राइट ना बच्चों, कि कम्युनलिज्म की ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जो रिलीजियस लीडर्स है, हर धर्म के जो लीडर्स है बच्चों, नेता है, हर धर्म के धर्म गुरु हैं, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। सोशल लीडर्स, समाज कार्यकर, समाज के जो नेता हैं, उन्हें भी इकट्ठा होना चाहिए और हिल मिल के उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और हर धर्म के नेता को, लीडर को समझाना चाहिए अपने लोगों को कि देखो, सिर्फ हमारा ही धर्म महान नहीं, हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि हर धर्म की कि इज्जत करो, सम्मान करो, वही सच्चा धर्म है। राइट ना बच्चों? आगे, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग एंड न्यूट्रल यूथ्स शुड रिजॉल्व टू एबॉलिश कम्युनलिज्म। कि यूथ, जो नौजवान है हमारे देश के, उनको बच्चों आगे आना चाहिए, जो कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल है। वो किसी एक मजहब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और किसी को इग्नोर करे, ऐसा नहीं। न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसे यूथ को आगे आना चाहिए टू एबॉलिश कम्युनलिज्म। और लास्ट स्टेप है बच्चों, सिटीजन शुड कीप नेशनल इंटरेस्ट अबव कम्युनल इंटरेस्ट। मोस्ट आईएमपी पॉइंट बच्चों जो लास्ट में आ रहा है, देखो कि नेशनल इंटरेस्ट है बच्चों, कम्युनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट दोनों में फर्क समझो बच्चों। कि नेशनल इंटरेस्ट यानी देश पहले आता है, कम्युनल इंटरेस्ट यानी धर्म, मजहब, रिलीजन बाद में आता है। आपको अगर चॉइस करने के लिए कहा जाए कि धर्म या देश, पहले किसे चुनोगे, तो हमारा जवाब होना चाहिए पहले हमारी मदरलैंड, हमारा देश आता है, हमारा मातृभूमि आती है, हमारी मादरे वतन आती है। राइट ना बच्चों? हमारा मुल्क आता है पहले, तो पहले हमारा देश आएगा, उसके बाद हमारा धर्म, हमारी जाति आनी चाहिए। राइट? जब देश की बात आ पड़ी हो बच्चों, तब धर्म को, जाति को बाजू में रख देना चाहिए, है ना? हमारे जवान देखो सरहद पर जो लड़ रहे हैं बच्चों, वो तो कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, नहीं, क्योंकि उनके लिए मजहब बाद में, पहले कौन आता है? देश पहले आता है। राइट ना? और यही स्पिरिट, यही भावना हमारे हर नागरिक में होनी चाहिए, और तभी बच्चों हमारा देश आगे बढ़ सकता है। एंड देन ओनली वी कैन टेक प्राइड इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता तभी आ सकती है ना? जब हम कम्युनल आइडियोलॉजी को टाटा बाय बाय कह दे हमारे दिमाग में से, हमारे सोच में से। Isn't it बच्चों? सो बच्चों, आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया। राइट? That's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best for today's learning. Bye.